Hello doctors and parents, a very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session, we're going to discuss about the complete detail as well as the information regarding your All India Round 3, States Round 3, NRI document verification, NRI list update, as well as we also gonna look at some really important rules which has been changed regarding your all States Round 3, as well as what will be the eligibility criteria for your state round, that is after the round 3, the what will be the rules and regulation for your round 4. Before that, if you are new on this channel, if you haven't subscribed to our YouTube channel Admission Media, then do subscribe it, as well as do join our Telegram channel, because whatever the states updates and the information, the notices, we are continuously posting there. So if you haven't joined it, do join it. As well as if you're looking for a paid or premium counseling services, you can contact me. If we're gonna talk about the first, we're gonna talk about the choice filling update. The choice filling as well as locking has already been done for your MCC All India Round 3, means ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी चॉइस लॉकिंग करने भूल गए हो, सो नो नीड टू वरी, इट इज ऑलरेडी ऑटो लॉक सिस्टम. जैसे ही आपकी सीट प्रोसेसिंग की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी, आपके चॉइसेस लॉक स्टेटस शो होने लगेगा. तब तक वो आपको अनलॉक दिखेगा, तो नॉट टू वरी. अगर आपने लॉक कर दिया है एट द गिवन टाइम फ्रॉम 8 AM इन द मॉर्निंग, देन इट्स गुड. अगर आपने लॉकिंग नहीं की है या इफ यू हैव फॉरगेट टू लॉक योर चॉइसेस, नॉट टू वरी, इट्स ऑलरेडी ऑटो लॉक सिस्टम. आपकी जो भी चॉइस फिलिंग आपने सेव किया है एट द लास्ट मोमेंट, वो आपकी ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट होगी. बात करूं द इंपॉर्टेंट अपडेट इज रिगार्डिंग द एनआरआई लिस्ट. Yesterday late night your NRI list has been published and we are unable to upload a video, but we have said the multiple details. Let me talk about the NRI details as well as the NRI candidates. In MCC round 1, almost 608 candidates has applied for the round 1, 134 in round 2, and 700 new candidates have applied for the round 3. Out of this, almost 600 are those candidates who are newly eligible in your आफ्टर दिस रिवाइज कट ऑफ. मीन्स रिवाइज कट ऑफ आने के पहले ऑलरेडी राउंड 3 हो गया था. एनआरआई लिस्ट भी आई थी, अप्रॉक्सीमेटली 97 कैंडिडेट्स थे उसमें, एंड देयर वाज सम एरर आल्सो. सो ऑलमोस्ट आपके 90 कैंडिडेट्स ने ही अपनी रजिस्ट्रेशन या एनआरआई डॉक्यूमेंट में कन्वर्जन कराया था. बट न्यू एलिजिबल जो कैंडिडेट्स आए हैं, दे आर अराउंड 600. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सीट्स, till round 2 almost 450 candidates were those candidates who have already joined the NRI seat or they went for the upgradation. Means almost 350 के अप्रॉक्स में सीटें हैं in the all India round 3. and अगर मैं बात करूं exactly how many candidates are still fighting for those seats, then approximately 950 plus candidates are fighting. Almost 1000 candidates are still in the race for 350 clinical seats in all India, including एनेस्थीसिया, ईएनटी, पैथोलॉजी, साइकेट्री ऑल्सो. मतलब कि एनेस्थीसिया, ईएनटी, साइकेट्री, पैथोलॉजी को भी आप इंक्लूड करते हो, तब भी 350 के आसपास सीटें होती हैं. और इनके लेने के लिए जो क्वांटिटी है एनआरआई कैंडिडेट्स की या एनआरआई जिनकी कन्वर्जन हुई है, दे आर मोर देन 950 एंड ऑलमोस्ट 1000 कैंडिडेट्स हैं. इफ आई टॉक अबाउट द व्हाट्स द सिचुएशन इन स्टेट्स, एमपी स्टेट ऑलमोस्ट टिल टुडे 1000 plus NRI conversion has been done. Karnataka till yesterday late evening 750 plus candidates has converted for the NRI, and today again they have extended their schedule till 1:30. The again the document verification for NRI candidates is going on. कल तक ही 750 हो गए हैं. आज जो होंगे वो एडिशनल, द रिपोर्ट विल बी कमिंग बाय इवनिंग, सो देन वी विल गिव द क्लियर पिक्चर. राजस्थान ऑलरेडी नो सीट्स. Almost 157 clinical seats are available for the other states candidates, mainly in the management quota or NRI quota. If we talk about the radio, 6 seat, derma 12 seat. So if anyone is claiming you कि हम सीटें दिला सकते हैं, तो you can understand that what is happening. If I talk about the Maharashtra is already a closed state, but for their NRI seats anyone can apply and they can get the seat. And बात करूँ, 50 NRI seats are available in Maharashtra. In the whole Maharashtra, only 50 NRI seats are available, including pathology. So you can understand exactly क्या condition है. If I talk about the West Bengal, only one pathology seats are left out, and all the seats are already allotted in state round 2 itself. Round 2 की कुछ दिन पहले रिजल्ट आई थी, सिर्फ पैथोलॉजी की एक सीट बची थी, बाकी सारी सीटें अलॉट थी. जो अभी ज्वाइनिंग करने के बाद छोड़ेंगे, वही सीटें आपकी राउंड 3 में आएंगी. तेलंगाना एंड आंध्रा, each and every candidate has an NRI document. In Andhra and Telangana, each and every candidate is already having an NRI document or sponsored document is ready with them. Tamil Nadu, every second or third candidate has an NRI document. So still
इफ यू थिंक कि आपको हायर क्लिनिकल ब्रांचेस मिल जाएंगे एंड एनी इंस्टीट्यूट और एनी कॉलेज इज गिविंग यू ऑफर, तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा. अगेन देयर इज अ न्यू क्लॉज इन द एलिजिबिलिटी फॉर MP and Rajasthan. MP and Rajasthan, all the seats will be first allotted to their state candidate, even including NRI, management, state quota seats. पहले MP और राजस्थान की जितनी भी सीटें हैं ये स्टेट कोटा के कैंडिडेट्स को अप्लाई की जाएंगी. स्टेट्स कोटा के कैंडिडेट्स को ही एलिजिबिलिटी मिलेगी. अगर इनके बाद या कोई नहीं बचता है तब ये सीटें अदर स्टेट का कोई बच्चा ले सकता है. सो द रूल इज सिंपल. अगर आप MP और राजस्थान टारगेट करके सोचे हो कि आपको मिल जाएंगी या MP के रेस में आप जा रहे हो, तो ऑलमोस्ट 1000+ कैंडिडेट्स ने NRI कन्वर्जन कर रखा है, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं विद द क्लॉज कि पहले सीटें इनके स्टेट को मिलेंगी. अगर फिर सीटें लेफ्ट आउट होती हैं या स्टेट का कोई बच्चा नहीं रहता है, नो मैटर व्हाट्स द रैंक, देन ओनली द सीट्स कैन बी अलॉटेड टू द अदर कैंडिडेट और द अदर स्टेट्स कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी. तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी. बट इन द मीन टाइम आई एम स्टिल सेइंग, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, बिकॉज मल्टीपल ऑफ द कैंडिडेट्स और द पेरेंट आर देयर हु आर अनेबल टू मेक द डॉक्यूमेंट एंड हु आर नॉट रेडी टू मेक द डॉक्यूमेंट, इवन इन दिस केस we can allot you the higher clinical branches like radio, derma, medicine, anesthesia, ENT, optal, each and every branch. But in this case your budget will be tight and the budget will be very high. Even NRI सीटों पे भी बजट बहुत हाई जाने वाला है, क्योंकि नेगोशिएशन कहीं नहीं होगा. कहीं पे 1 करोड़ to 1.5 करोड़ पर एनम की भी फीसें देखने को मिलेंगी आपको. ऑलमोस्ट कुछ एक ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये फीसें अवेलेबल हैं. कहाँ पे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको सीटें नहीं मिलेंगी. 110% जस्ट एलिजिबिलिटी स्कोर पे भी आपको सीटें मिलेंगी. NRI डॉक्यूमेंट है तब भी मिलेंगी. इन ए केस अगर आपके पास बजट है और यू आर नॉट रेडी टू मेक द fraud document or the sponsor document, then even in that case, as per the rules and regulation of the Supreme Court, MCC and everything, we can allot you the management seats also in some state. कहाँ पे मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, for all those details you can avail about premium counseling services. The details is already available on our website admissionmedia.in about the charges and everything. In the meantime, if you have any question, any query, you can contact me on the given number below, that is 9545 95519. सो डोंट जस्ट रन इन द रैट रेस, क्योंकि सिर्फ रनिंग करने से, एक के पीछे एक चलने से सीटें नहीं मिलेंगी. इफ यू आर डूइंग द स्मार्ट वर्क देन ओनली सीट कैन बी अलॉटेड, बिकॉज मल्टीपल स्टेट्स विल बी कंडक्टिंग देयर राउंड 3 एज वेल एज राउंड 4, दैट इज मॉप अप एज वेल एज द स्टे राउंड इन द ऑफलाइन मोड. एट अ टाइम यू कैन टारगेट ओनली वन स्टेट. सिर्फ महाराष्ट्र लेके चलोगे, राजस्थान MP छूटेगा. MP लेके चलोगे, महाराष्ट्र राजस्थान बाकी और स्टेट छूटेंगे. तो यू हैव टू प्लान एग्जैक्टली कौन सा स्टेट को टारगेट करना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग फील्ड. नहीं तो आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी, डॉक्यूमेंट पे पैसे खर्चे कर लोगे, बजट भी होगा, एलिजिबिलिटी भी होगी, लेकिन सीट नहीं मिलेगा. बिकॉज व्हाट्स द एक्चुअल कंडीशन आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड यू. आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो. सीट मैट्रिक्स आ चुकी है. बिहार में कोई NRI सीट अलॉट कराने के लिए बात कर रहा है तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इफ यू आर जस्ट एलिजिबल. या 250 या 220 पे कोई बोल रहा है कि आपको बिहार में NRI सीट अलॉट कर देंगे, नॉट पॉसिबल एट ऑल, इट्स टोटली फ्रॉड थिंग. सीट बुकिंग और ब्लॉकिंग कहीं नहीं हो रही है. अगर कोई आपसे अमाउंट डिमांड कर रहा है तो इट्स नॉट पॉसिबल. एवरीथिंग विल बी डन एज पर द काउंसलिंग. बट काउंसलिंग में चीजें कैसे हो सकती हैं, कहाँ पे हो सकती हैं, कहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग है, कैसे क्या होती है, काउंसलिंग से भी हजारों चीज की जा सकती हैं. इट्स जस्ट अ हिंट फॉर यू, कैसे होगा, कहाँ क्या होगा. फॉर ऑल दोज डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो. स्टे राउंड की एलिजिबिलिटी में आपको क्लियर कर दूं. ऑल इंडिया राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉटमेंट मिल गई तो यू विल बी नॉन एलिजिबल फॉर योर ऑल इंडिया स्टे राउंड, या स्पेशल स्टे राउंड भी अगर होता है तो उसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी चली जाएगी. इस राउंड में अगर आपको कोई भी सीट मिलती है तो यू कैन लीव द सीट विद द पेनल्टी ऑफ विद द फॉरफीचर ऑफ योर सिक्योरिटी अमाउंट. आपने अगर डीम्ड की सीट अलॉट हुई है तो जो भी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफीट हो जाएगी और आप फर्दर स्टेट्स के लिए एलिजिबिलिटी रहती है आपकी, और आप ऑल इंडिया स्टे राउंड से बाहर कर दिए जाओगे. बट इफ यू गॉट एनी सीट अलॉटमेंट इन द ऑल इंडिया स्टे राउंड, in that case if you not joining the seat then you will be debarred for 1 year NEET PG session itself. मतलब कि अगले सेशन में आपको एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा बट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे चीजें करनी चाहिए. फॉर ऑल दो डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी you can ping me on WhatsApp also. Thank you and thank you so much for watching this video, and your result will be published by most probably by tomorrow, so not to worry. Wish you all the very best for it also. Thank you and thank you so much for watching this video.